Indian naval ship Tir with pennant number Alpha 86, commanded by Captain Tijo K. Joseph, is the next ship on your right-hand side. आईएनएस तीर का आदर्श वाक्य है, नाम नमक निशान पर, तीर सदा मुकाम पर। On your left is Indian naval ship Nirdeshak, commanded by Captain Ajay Chauhan. यह आधुनिक हाइड्रोग्राफिक उपकरणों जैसे मल्टी बीम इको साउंडर, डिजिटल साइड स्कैन सोनार, ऑटोनोमस जलयान और रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल से लैस है। You can see towards your right the fourth ship of Kamorta class ASW corvettes, Indian naval ship Kavarati, commanded by Commander Ashwini Kumar Bura. आईएनएस कवरती भारतीय स्टील और मिश्रित सुपरस्ट्रक्चर के अनूठे कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। She stands out for her stealth features that suppress radar, thermal, and acoustic signatures. On your left is Indian naval ship Sandhayak, commanded by Captain Natua Dheeraj. INS Sandhayak, built by Garden Reach shipbuilders and engineers, is the lead ship of her class of survey ships. देवियों और सज्जनों, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2026 के नेविगेशनल चार्ट का निर्माण आईएनएस संधायक ने किया है। The next ship coming up on your right is Indian naval ship Kiltan with pennant number Papa 30, commanded by Commander Alok Gaurav. यह कमोरता श्रेणी के पनडुब्बी रोधी कॉर्वेट का तीसरा जहाज है, जो उन्नत सोनार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियों, टॉर्पीडो, एचडब्ल्यू रॉकेट, तोपों और क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। Coming up on your left is Indian naval ship Ikshak, commanded by Captain Tribhuvan Singh. इक्षक नाम का अर्थ है मार्गदर्शक और इसे समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाने और संसाधनों की खोज के लिए तटीय और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक सर्वे करने के लिए डिजाइन किया गया है। We are now approaching Indian naval ship Kamorta, pennant number Papa 28 on your right-hand side, commanded by Commander Swapnil Srivastav. मेक इन इंडिया का एक शानदार उदाहरण यह जहाज 90% आत्मनिर्भर है। इसका आदर्श वाक्य है, शत्रुनाम संघातकः, अर्थात शत्रु का संहार करने वाला।
The last ship on this leg coming up on your right is yet another unique ship in Indian Navy's inventory. Indian naval ship Nistar, commanded by Commander Amit Subro Banerjee. She's an indigenously built diving support vessel. Her operational prowess has enhanced the submarine rescue capabilities not only for the Indian Navy but for the larger Indo-Pacific. यह युद्धपोत कुशल सैचुरेशन डाइवर्स और विशेषज्ञों द्वारा संचालित गहरे समुद्र में रिकवरी, पानी के भीतर रखरखाव और मानवीय क्षमताओं को बढ़ाता है। With that, ladies and gentlemen, we come to the end of the second leg of the review covering the third and fourth columns of anchored ships. Before the President of India reviews the fifth and sixth columns, we shall now witness an aerial display of activities. Otherwise, rotor wash generated by the rotors can be dangerous to the diver and the helicopter. समुद्र में सर्च एंड रेस्क्यू एक अत्यंत महत्वपूर्ण क्षमता है, क्योंकि समुद्र में ऑपरेट करते समय सबसे बड़ी चुनौती अक्सर समुद्र स्वयं ही होता है। अभी हमारे सामने समुद्र शांत है क्योंकि मॉनसून हाल ही में पीछे हटा है, पर सामान्यतः सी रफ रहते हैं और शिप को रोलिंग और पिचिंग का सामना करना पड़ता है। इसलिए कठिन सी स्टेट्स में अनुभव की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में यह सर्च एंड रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आवश्यक होते हैं। किसी भी दुर्घटना या समुद्र में गिरे हुए व्यक्ति की तुरंत सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। और ये बुनियादी क्षमता केवल हमारी युद्धपोतों के लिए ही नहीं, बल्कि मर्चेंट शिप्स और छोटी बोट्स, मछुआरों इत्यादि के लिए भी काम आती हैं। We shall now witness a simulation of rescue operations by Dhruv helicopters. Here, the helicopters fly at low altitudes at a speed of 10 knots and dispatches free divers to rescue survivors in water. This method is typically employed when more than one survivor is in water, such as in case of a boat capsize. The idea is to support as many non-swimmers as possible and get them to safety. देवियों और सज्जनों, हेलीकॉप्टर्स कम ऊंचाई पर 10 नॉट्स की गति से उड़ेंगे और पानी में जीवित बचे लोगों को बचाने के लिए गोताखोरों को उतारेंगे। यह तरीका आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब एक से अधिक लोग पानी में जीवित बचे हों, जैसे कि नाव पलटने की स्थिति में। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक उन लोगों को सहायता प्रदान करना है जिन्हें तैरना नहीं आता और उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है। Ladies and gentlemen, you just witnessed the divers being winched up to the helicopter, depicting the successful rescue of the survivors from the sea.
In a short while, ladies and gentlemen, the President of India will review the 5th and 6th columns of anchored vessels. This would be our third leg, and we shall now witness some of the larger vessels that are participating in this historic review today. देवियों और सज्जनों, कुछ ही क्षणों में भारत के राष्ट्रपति 5वें और 6ठे कॉलम की समीक्षा करेंगे। यह हमारी तीसरी कड़ी होगी और आज हम इस ऐतिहासिक समीक्षा में भाग लेने वाले कुछ बड़े युद्धपोतों को देखेंगे। This column also comprises the gallant warships of the carrier battle group that dominated the northern Arabian Sea during Op Sindoor. देवियों और सज्जनों, अब आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर में अपना पराक्रम और शौर्य का लोहा मनवाने वाले कैरियर बैटल ग्रुप के जहाज। आखिर कैरियर बैटल ग्रुप क्या है? कैरियर बैटल ग्रुप एक व्यापक सामुद्रिक क्षमता है जो युद्धपोत, फिक्स्ड विंग और हेलीकॉप्टर के साथ साथ तट से आए हुए सर्विलियंस एयरक्राफ्ट और नेटवर्क डेटा से संगठित होता है। एयरक्राफ्ट कैरियर इस क्षमता का केंद्र है। इस बैटल ग्रुप के अन्य शक्ति स्रोत हैं आपके सामने तैनात बलशाली डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स, उन पर एम्बार्क्ड हेलीकॉप्टर्स और खुद कैरियर के ऊपर के लड़ाकू विमान। कैरियर बैटल ग्रुप एक